Hello students, in the last session we had seen that Hari Singh had stolen 600 rupees from Anil's room, but he couldn't catch the train. He had some kind of hesitation, and that's why he hadn't boarded in that train. He has his views about face reading. Now let's see further. Page number 11. First I will read the passage. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes, they were damp from the rain. Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences, I knew, could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50-rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirits rose. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we will start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. I found myself in the Maidan and sat down on the bench. बाज़ार में घूमते घूमते बाद में एक मैदान, एक ओपन स्पेस जो है, ग्राउंड जो है, वहाँ पे वो आ जाता है और एक बेंच पे बैठ जाता है. द नाइट वॉज चिली. इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. नवंबर महीना है, नेचुरली ठंडी का महीना है, काफ़ी ठंड थी और उसके साथ में जो है उसके डिस्कम्फर्ट को और भी उसको जो उसकी परेशानी को, हरी सिंह की परेशानी को बढ़ाने के लिए हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. धीरे धीरे बारिश भी बढ़ जाती है, वो हेवी हो जाती है, उसका शर्ट पैजामा उसके कपड़े जो है गीले हो जाते हैं. बारिश के साथ साथ ठंडी हवा भी जो है वो भी चल रही है. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. वो फिर से बाज़ार में जाता है, वहाँ पे जो क्लॉक टावर है उसके शेल्टर में वो खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है. The clock showed midnight. I felt for the notes, they were damp from the rain. क्लॉक में उसको पता चलता है, क्लॉक में देखने के बाद में, कि काफ़ी रात हो चुकी है, आधी रात हो चुकी है. अभी वो उन नोटों के बारे में सोच रहा है जो बारिश की वजह से गीली हो रही थी. अनिल्स मनी, वो जो पैसे जो थे वो अनिल के पैसे थे. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all. वो सोचता है कि सवेरे जो है कि शायद वो मुझे, अगर वो घर पे रहता, अगर वो पैसे घर में रहते तो अनिल जो है उसे 2 या 3 रुपीस दे देता सिनेमा देखने के लिए या कुछ नाश्ता वाश्ता करने के लिए. लेकिन अभी पूरे के पूरे पैसे हरी सिंह के पास में हैं. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore.
अभी वो सोच रहा है कि अभी मुझे उसके लिए खाना बनाना नहीं पड़ेगा, दौड़ते दौड़ते बाज़ार में जाओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये भी नहीं करना पड़ेगा, ना लिखना पड़ेगा, ना तो अभी मुझे पूरा सेंटेंस भी लिखना नहीं पड़ेगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी करने का जो वो सोचता है कि चोरी आज करनी चाहिए, पैसों को देखकर जो उसका माइंड जो फिर जाता है, घूम जाता है, उसको एक्साइटमेंट में ये याद ही नहीं रहता कि होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। उसको होल सेंटेंसेस से याद आता है कि होल सेंटेंस जो है अगर वो सीख लेता है, लिखना सीख लेता है, अच्छी तरीके से सीख लेगा, तो वही होल सेंटेंसेस उसको आगे की लाइफ में काफ़ी सारे 100 रुपीज़ लेकर आ सकते हैं। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। ये जो मैटर जो है कि ये तो बस सिंपल, काफ़ी बहुत ही ईजी है कि चोरी करना, और उससे भी जो है कभी कभी चोरी भी अच्छी तरीके से सक्सेसफुली हो जाएगी, लेकिन कभी कभी जो है इतना भी सिंपल है कि पकड़े भी जा सकते हैं। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक जो रियली बिग मैन है, जो सच में उसके थॉट्स काफ़ी अच्छे हैं, जो क्लेवर है, जो रिस्पेक्टेड है, उसके लिए ये सारी बातें काफ़ी अलग हो सकती है। वो अनिल के बारे में ये सारी बातें सोच रहा है कि बिग मैन, क्लेवर, रिस्पेक्टेड मैन, ये सभी उसने अनिल के लिए बोला हुआ है। ही एड्रेस अनिल एज अ रिस्पेक्टेड मैन। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और वो सोचता है कि उसने फिर से वापस चले जाना चाहिए, अनिल के पास जाना चाहिए, और आगे जो वो लिखना है, पढ़ना है, वो उसने वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. वो जल्दी से फिर अपने रूम की तरफ जाता है, काफ़ी नर्वस है क्योंकि अभी भी वो डिलेमा में है। ही वॉज कन्फ्यूज्ड, हिज माइंड वॉज कन्फ्यूज्ड कि क्या वो जो कर रहा है वो सही है या फिर उसने जो पहले किया वो सही है, और इसीलिए काफ़ी नर्वस है। अभी वो रूम पे आ गया है और उसको ये सोच रहा है कि चोरी करना इजी है, लेकिन उससे भी जो है कि जो कुछ मिला हुआ है वो फिर से वापस करना, ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसे वो सोच रहा है, और इसीलिए ही वॉज इन डिलेमा, वो काफ़ी नर्वस है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अभी वो आ गया, उसने रूम ओपन किया अपना, और वो देख रहा है कि अभी बारिश बंद हो गई है, क्लाउडेड मूनलाइट जो है वो उनके रूम में आ रहा है। अनिल सोया हुआ है। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। कि वो जो है धीरे धीरे फिर से क्रॉलिंग करते हुए, क्रेप्ट करते हुए बेड की तरफ जाता है, और वो नोट जो है वो वहाँ रखता है। तब उस टाइम जो है अनिल जो सोया हुआ है, उसका ब्रेथ, उसके सांस जो रहती है, चल रही है, वो उसके हाथों पे आ जाती है। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट। एक मिनट के लिए वो भी रुक जाता है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। शायद वहाँ पे अनिल का हाथ है या फिर सर है, और इसीलिए वो थोड़ा सा एक सेकंड के लिए रुक जाता है, और बाद में जहाँ से उसने पैसे उठाए थे वहीं पे वो पैसे अच्छी तरीके से रख देता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी रात भर इसने क्या किया है हरी सिंह ने हमको पता है, हरी सिंह को पता है, और इसलिए दूसरे दिन उसको उठने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तब तक अनिल ने अपने लिए चाय भी बना ली है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स टूवर्ड्स मी। उसके हाथ जो है भी हरी सिंह की तरफ है। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। माई हार्ट सैंग। उसके हाथों में जो है, उसके फिंगर्स में उसने 50 रुपये की नोट जो है पकड़ी हुई है अनिल ने, और वो देखकर जो है हरी सिंह जो है वो थोड़ा सा डर जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। उसको लगता है कि हिज केस वॉज ओवर, कि वो शायद पकड़ा गया है, और अभी जो है कि उसको घर के बाहर निकल जाना पड़ेगा। शायद वो उसको मार भी सकता है, इंसल्टिंग बोल सकता है, और ये सोच के उसका जो है वो थोड़ा सा ही फेल्ट डिप्रेस्ड। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो अनिल बोलता है कि कल मुझे कुछ पैसे मिल गए थे, और इसीलिए अभी इसके आगे तुमको जो है रेगुलरली मैं पेड कर सकता हूँ, तुम्हारी सैलरी मैं अच्छी तरीके से मंथ टू मंथ जो है वो दे सकता हूँ। माई स्पिरिट्स रोज। ये सुनने के बाद में हरी सिंह खुश हो जाता है। ही बिकेम वेरी होपफुल, ही बिकेम वेरी हैप्पी।
उसको एक बात जो है कि अच्छा हो गया कि उसको पता ही नहीं चला, इस बात से भी खुशी है। और अभी उसको मंथली जो है सैलरी भी मिलेगी, ये भी बात से वो खुश है। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। जब वो नोट अपनी हाथ में लेता है हरी सिंह, तो उसको समझ में आ जाता है कि वो नोट गीली है। उसको पता है कि नोट कैसे गीली हुई है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। अनिल बोलता है कि आज से जो है हम पूरा सेंटेंस लिखना सीखेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. अनिल को सब पता है, लेकिन ना तो उसकी आंखें और ना ही उसका जो लिप्स जो है, उसका मुंह जो है, वो कुछ भी नहीं दिखा रहा है जो है, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशंस जो रहते हैं वो सीधे सीधे बता देते हैं। हमारी आइज़, हमारी आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती है। लेकिन अनिल जो है इतना अडमंट है, इतना फिक्स है, उसको पता है कि इसने कुछ तो भी गलत काम किया है, लेकिन फिर भी इस बार भी जो है वो कुछ भी कंटेम्प्ट उसको हरी सिंह के स्वभाव को लेकर या फिर हरी सिंह ने जो कुछ भी काम किया है उसको लेकर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। शायद वो ये सोचता है कि ये लड़का इसी तरीके से पॉजिटिवली उसको लेकर ही वो सुधर सकता है। और इसीलिए कहा गया है कि नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज़, ना तो उसकी आंखों में ना ही उसकी बातों से कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता है, जबकि उसको सब कुछ पता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। फिर से हरी सिंह जो हमेशा की उसकी अपीलिंग स्माइल है वो अनिल को देता है, लेकिन एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। इस बार जो हरी सिंह ने अनिल को स्माइल दी है वो उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है, विदाउट इंटेंशन है, विदाउट एनी एफर्ट जो है, अभी नेचुरल, काफ़ी नेचुरल स्माइल जो है हरी सिंह ने अनिल को दी हुई है।